Hello everyone, welcome to Tarot Sonali 777, and today we're gonna see what are your feelings. I was actually feeling called to do some other topic, but um I do not get any good response other than these current feelings sort of readings. Okay, so I'm clearly in this mode. I want to do other than feeling sort of a topic. I literally wanted to take a self-help sort of a topic. Okay, but to be very honest, in the past videos that I have done, nobody has given me that level of interest when it comes to those topics. Okay, so I'm clearly feeling to do that, but the thing is, if you really want it, then please comment yes, that yes, other than feeling sort of a topics, other than partner sort of a topics. Okay, regarding your guidance, regarding your highest purposes of life, highest what ahead in your life you should do. Okay, if you like such kind of topics, please comment yes, or please put your thoughts in the comments as well. Okay, today I'm gonna take the very famous topic, you versus them. What are your person feelings, what are your feelings towards the person, and let's see, then we'll see what is happening in the relationship, and we'll see what is going to happen in future, or maybe what is the actions of your persons. Okay. Hmm. Okay, let's see what are your feelings regarding your person. Okay. Fresh energies, like very fresh energies are coming for you. Okay. Hmm. Let's see what exactly is happening in this relationship. And what are the future actions of, we'll see afterwards what are the future actions, but let me give you an overview about your, say, very beautiful new beginning. Okay, see, the cards are clearly stating right now when it comes to your partner's feelings is, so person is basically right now in a very big confusion. Okay, the person has different sort of problems that are coming in his life and not knowing how to solve them, how to deal with you, because it is the feelings of your partner's energy. Basically, how to deal with you, how to deal with those problems, the person is clearly not understanding how to do. So basically, he is actually could be paying attention to his career or money or health or something else in his life, and conquering that one thing and solving that one problem, the person feels my rest of my every problem that I'm facing are clearly solved. Okay, so every other problem with you is in backseat. Okay, other than that, what is in his hand, he is actually controlling that and trying to solve them. Okay, so right now the person is in this dilemma, not knowing how to deal with you in life, how to deal with this feeling. Also, other person is struggling, see, clearly struggling to give you commitment is what I'm clearly seeing. So the person feels that a lot of struggle when it comes to commitment. See, this person is literally stressed. Okay, everything is actually going in his mind, mentally trapped. Okay, not able to sleep at night. Okay, insomniac, depressed, stressed, worried, what to do, negative thought process, worried about to what to do again. See, the person feels a lot of stress regarding what? Okay, regarding this 10 of regarding making family towards you.
कि मैं इस इंसान के साथ आगे फैमिली बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे. Okay, the person is in different worries. Okay, the person is clearly feeling different sort of worries in his life when it comes to you, when it comes to this relationship. Okay, stressed when it comes to commitment, very commitment phobic. Okay, struggling to give commitment. Okay, whenever अगर आप commitment की बात भी करोगे तो the person is like nowhere. Okay, very see very exhausted, tired, monotonous लगता है उनको ये relationship. वाई बिकॉज क्लियरली अब ना ये रिलेशनशिप उस लेवल पर आकर पहुंच गया है जहाँ पर कमिटमेंट से अब आगे कुछ नहीं है. कमिटमेंट होगा तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, वरना उसके आगे कुछ है नहीं इन दिस रिलेशनशिप. तो बेसिकली द पर्सन इज़ वेरी टायर्ड और मे बी टायर्ड टू क्लियरली स्ट्रगल विद दिस फीलिंग ऑफ वॉट, ऑफ कमिटमेंट. ओके, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. क्लियरली द पर्सन हैज़ द सॉल्यूशन. वो कमिटमेंट दे देगा आपको तो क्लियरली देर इज सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग. ओके, दिस रिलेशनशिप इटसेल्फ, हिज वरीज इटसेल्फ हैज सॉल्यूशन. बट अब ना ये क्लियरली मुझे इंसान ना मुझे अब देखो 10 ऑफ कप्स कमिटमेंट ऐसे इंसान चाहता तो है बट पर्सन इज स्ट्रगलिंग व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट. ओके, और ये रिलेशनशिप अब उस एंड पर आकर पहुंच गया है कि कमिटमेंट के अलावा ज़्यादा इसमें कुछ अब रहा नहीं है. ठीक है, अब कमिटमेंट नहीं होगा तो ब्रेकअप होगा, दोनों में से एक चीज़ होगा. ठीक है, तो क्लियरली आई एम क्लियरली स्टेटिंग कि दिस पर्सन इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू गिव कमिटमेंट, स्ट्रगलिंग टू मूव अहेड, टेक दिस रिलेशनशिप टू अ वेरी नेक्स्ट स्टेबल, वेरी स्टेबल सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट. ओके, एक स्टेबिलिटी देने के लिए ना ये इंसान ना क्लियरली स्ट्रगल कर रहा है. ओके, मेंटली इज़ वेरी स्ट्रेस्ड. ओके, तो मेंटली ट्रैप्ड है. अगर देखेगा ना, सी द मोमेंट ही विल लुक एट इट द पर्सन विल फील दिस 10 ऑफ कप्स. द पर्सन फील्स फैमिली विथ यू, द पर्सन फील्स कमिटमेंट विथ यू, लॉयल्टी विथ यू. ओके, एवरीथिंग द पर्सन फील्स विथ यू बट इज़ नॉट एबल टू पुट इन टू प्रैक्टिस. ओके, is not able to put it into action. When it comes to actions and actually in reality putting this thing happening, the person ना स्ट्रगल फील करता है, मोनोटोनस फील करता है, स्टॉक, सैचुरेटेड, ये सब फील करता है व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट. ओके, तो क्लियरली द कार्ड इज स्टेटिंग, कार्ड्स आर क्लियरली स्टेटिंग कि एक उनके लिए ना ये रिलेशनशिप एक स्टकनेस मोड पर आकर खड़ा रह गया एंड दैट स्टकनेस पार्ट इज कमिटमेंट. ओके, अब इस रिलेशनशिप में आगे शादी के अलावा आपको और स्टेप बचा नहीं है. दिस इज़ फॉर दोज पीपल ना, मुझे ये आपका पार्टनर और आप मुझे ना वो ये रिलेशनशिप क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है. आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग इट, बट उन लोगों के लिए लग रहा है कि जिनके मतलब 1 साल हो चुका है, 1 साल के ऊपर का रिलेशनशिप है, ये नया रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, आई एम क्लियरली सीइंग, सी फॉर यू हैव क्लियरली सी you're not listening to this person right now. Okay, maybe आपने मतलब क्लियरली उन्होंने ना हो सकता है वॉक अवे कर दिया है बिकॉज आप ना क्लियरली अब कमिटमेंट चाहते हो एंड दैट इज़ इन हिज माइंड. वो उसके दिल दिमाग में बस चुका है. दैट इज़ वाई द पर्सन हैज़ मूव्ड अवे बिकॉज कमिटमेंट इटसेल्फ हैज़ बिकम एन इशू फॉर दिस पर्सन. कमिटमेंट फोबिक है ये इंसान. ठीक है, स्ट्रगल्स फील करता है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग दिस रिलेशनशिप टू स्टेबिलिटी. So there is going to be some new, see for you this relationship or something, see 1 and 2 has come together, so some new beginning you are, कोई new opportunity, कोई new beginning आप ना अपनी तरफ से करना चाहते हो. ठीक है, इस relationship में also you are in this verge where you have an option, you have an opportunity. Okay, you clearly have an opportunity. See, I will speak all the possibilities. I am टेक वॉट रेजोनेट बिकॉज दिस इज़ फॉर एवरीबडी. तो जो मुझे मैसेजेस इंट्यूटिवली आते हैं आई स्पीक दैट. आई एम क्लियरली सीइंग आपको कोई न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटी, और आप ये चाहते हो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ना लेना. ठीक है, मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो इस इंसान के साथ रहना चाहते हैं. ठीक है, इस इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नए सिरे से ना एक रिलेशनशिप का साइकिल ख़त्म करते एक नया रिलेशनशिप करना चाहते हैं. But clearly, I am clearly seeing you are juggling. See, you are juggling between 2 options or between your own feelings
ठीक है, आप हो सकता है आपके पास कोई और ऑप्शन है लाइफ में, कोई और पर्सन है कि आप ना उनकी तरफ बढ़ना चाहते हो, आप वो अपॉर्चुनिटी, वो इंसान के तरफ मुड़ना चाहते हो, बट यू आर नॉट एबल टू, इज वॉट द कार्ड इज स्टेटिंग. बट नाउ यू आर क्लियरली जगलिंग, बैलेंसिंग, जगलिंग विद टू पीपल इन योर लाइफ और टू इमोशंस इन योर लाइफ कि मैं इस इंसान के साथ रहूँ कि आगे बढ़ूँ. ठीक है, तो क्लियरली आई एम सीइंग योर एनर्जी इज ऑफ न्यू बिगिनिंग. आप ना कोई न्यू, वेरी स्टेब, वेरी वेरी कॉन्क्रीट, वेरी वेरी एक्शन ओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग चाहते हो, जहाँ पर ना आपके ऊपर कोई एफर्ट करे, आपके लिए कोई एक्शंस करे. ठीक है, ऐसा पार्टनर चाहते हो जो आपके, मतलब क्लियरली द कार्ड, यू वांट अ वेरी डेस्टाइन सॉर्ट ऑफ अ पार्टनर हु पुट्स एफर्ट्स इन टू यू. वो भी आपकी केयर करे. आप जिस लेवल पर इस रिलेशनशिप में मेहनत करो, वो भी आपके ऊपर उस लेवल में रिलेशनशिप में मेहनत करे. ठीक है, यू वॉन्ट टू फील दिस लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ दिस पर्सन. जिन लोगों को ना ये रिश्ता रखना है इस इंसान के साथ, उनके लिए मुझे क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि आप जिस तरीके का एफर्ट करोगे उस डायरेक्शन में यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, तो अगर आप ना इस इंसान के साथ झगड़ते रहे, कंप्लेन करते रहे, ठीक है, तो रिलेशनशिप उस हिसाब से जाएगा. आई एम क्लियरली सीइंग दिस पर्सन इज कमिटमेंट फोबिक, और इस कमिटमेंट का ये इंसान ना कुछ कर नहीं पाएगा, अभी स्टक मोड में है. लिटरली द पर्सन इज वेरी वेरी मच मेंटली वेरी ट्रैप्ड when it comes to, is very worried when it comes to this relationship, और इस चीज़ का वो कुछ कर नहीं पाएगा, इज़ वॉट द कार्ड इज स्टेटिंग. तो मैं यही बोलूँगी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग आ रही है, तो हम क्लियरली सीइंग कि अगर आप चाहते हो, ठीक है, आपको वियर्ड थॉट्स आ रहे हैं, मुझे क्लियरली लग रहा है उन लोगों के लिए जो जगल कर रहे हैं, जो लोग रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, उनको ना नए सिरे से, नए तरीके से इस इंसान के साथ ना अब ये रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहिए, इज़ व्हाट द कार्ड इज स्टेटिंग. ओके, बट क्लियरली एज आई सेड, ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट के अलावा अब ज़्यादा कोई स्टेप बाकी नहीं रहा. ठीक है, या तो कमिटमेंट है या नहीं है ये रिश्ता. तो क्लियरली आई एम सीइंग कि जिन जिन लोगों को ना न्यू बिगिनिंग करना, इज गोइंग टू डू न्यू बिगिनिंग इन विथ सम अदर पर्सन, बट यू आर गोइंग टू जगल व्हेन इट कम्स टू इमोशंस. आप ना इसके साथ भी रहना चाहोगे, उसके साथ भी रहना चाहोगे, तो चूज वन, इज़ व्हाट द कार्ड इज स्टेटिंग. और उस एक इंसान में ना फिर मेहनत करो. आपको जहाँ पर लगे कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लिए बेटर रहेगा, बेटर पार्टनर रहेगा, तो क्लियरली वर्क ऑन दैट पर्सन. ओके, जैसा रिलेशनशिप को जैसे डायरेक्शन में ले जाओगे, उस डायरेक्शन में मेहनत करो, मिलेगा. जितना मेहनत करोगे उस डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो व्हाट द कार्ड इज स्टेटिंग, राइट नाउ यू आर नॉट रेडी टू, क्लियरली मुझे क्लियरली ना आपकी ना, मुझे जगलिंग वाली एनर्जी, नॉट कोई चॉइस नहीं बना पा रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी लग रही है. ठीक है, बट डेस्टिनी इज गोइंग टू इंटरवीन इफ़ यू पुट एफर्ट, और आप ना एक एक्शन लो, कुछ नए सिरे से अपनी तरफ से भी कोई शुरुआत नहीं करो. ठीक है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही, उसको ग्रैब करो और बैलेंस करो कोई रिलेशनशिप को. तो मुझे क्लियरली लग रहा है आपको ना क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये जगलिंग वाला पार्ट चला जाएगा. ठीक है, आपको पता चल जाएगी कि ये इंसान मेरे लिए बेटर है या ये इंसान मेरे लिए बेटर है. ठीक है, आई एम क्लियरली सीइंग टू पीपल. तो आई वुड, मैं देखो डबल डेट करना नहीं बोलूँगी, बट ये रिलेशनशिप स्टक है, जिसके साथ आप हो ना, ये स्टक है, ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा. तो कोई और इंसान को मौका देने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, जिन जिन लोगों को इस इंसान के साथ ही, प्रेजेंट इंसान के साथ ही आगे बढ़ना है, उनके लिए कार्ड इज स्टेटिंग, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, बट यू आर गोइंग टू जगल. ओके, शुड आई टेक दिस पर्सन और शुड आई टेक दैट पर्सन. ऑल्सो द कार्ड इज स्टेटिंग, आपको ही नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी. ओके, नए तरीके से एफर्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, इज व्हाट द कार्ड इज स्टेटिंग. थिंकिंग एंड हैविंग दिस इन माइंड कि दिस पर्सन इज कमिटमेंट फॉबिक एज वेल. ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को बार बार ना एक ही डायरेक्शन में आप लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि एंड ना आपको पता है कि ये इंसान कमिटमेंट फोबिक है, तो यहाँ तो कुछ होने नहीं वाला. ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी मेरी सलाह यही होगी कि इफ़ यू हैव सम ऑप्शन इन योर हैंड और सम न्यू पर्सन इज कमिंग, लुक, वॉच, स्टे फ्रेंड्स विद द पर्सन, अंडरस्टैंड डू यू हैव प्रॉपर वैल्यू विद दिस न्यू पर्सन और नॉट. ओके, थोड़ी जगलिंग वाली एनर्जी होगी, बट यू आर वेरी पैशनेट, सो यू विल क्लियरली हैव, सी गॉड इज ऑल्सो इंटरवीनिंग. अगर सही इंसान के साथ सही एफर्ट करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस इंसान के साथ मुझे जाना है. ठीक है, तो नाउ गॉड इट सेल्फ इज इंटर, योर डेस्टिनी इज इंटरवीनिंग कि क्या करना है, इस इंसान के साथ जाना है कि देखना है. ठीक है, कि नए पर्सन को देखना है कि ये इंसान मेरे में कितना एफर्ट करता है, कितनी वैल्यू है इस इंसान को मेरी, कितना इंपॉर्टेंस है इस इंसान को मेरा.
ठीक है, तो हम क्लियरली स्टेटिंग कि अगर अभी ना आप नहीं कर सकते ना, तो बैलेंस बिटवीन टू पीपल इज़ व्हाट आई वुड से, ओके, क्योंकि आपकी जगलिंग वाली एनर्जी मुझे आ रही है. व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप इज लोनलीनेस. ओके, एक दूसरे मतलब पार्टनर ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए होने के बावजूद बोथ आर फीलिंग लोनली. ओके, सी सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल न्यू बिगिनिंग हैज़ हैपेंड इन दिस रिलेशनशिप. ओके, हो सकता है आपने करी है, क्योंकि आपका कार्ड मुझे न्यू बिगिनिंग का आया है. तो कोई न्यू रिलेशनशिप, कुछ न्यू बिगिनिंग आपने ना इमोशनली, आपने ना कुछ न्यू बिगिनिंग करा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को, इस इंसान के साथ ना आपने कुछ नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से, नए तरीके से इस इंसान के साथ डील करना, बिहेव करना, या फिर उसके अकॉर्डिंग चलना, ये सब ना आपने मन से कुछ ऐसा ट्राई किया इज़ व्हाट आई एम, बट स्टिल यू आर फीलिंग लोनली. Even after struggling a lot, you are feeling lonely is what the card is stating. See, you want, ये कार्ड ना तभी, सी ये कार्ड ना तभी आता है इफ़ यू सी, ये कार्ड ना दोनों के लिए है. इफ़ दिस रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे के लिए डिजर्विंग साबित होगे ना, दोनों एक दूसरे का समझोगे, पर्सपेक्टिव समझोगे, एक दूसरे की प्रायोरिटीज समझोगे, एक दूसरे को केयर दोगे, एक दूसरे के लिए समझोगे, आप एफर्ट करोगे, तो रिलेशनशिप में ना इक्वालिटी है. ठीक है, जितना फेयर एंड जस्ट एंड डिजर्विंग होकर इस रिलेशनशिप में एक दूसरे में आप ना इमोशंस पोर करते रहोगे. ठीक है, इमोशनली एक दूसरे को समझोगे, इमोशनली एक दूसरे के साथ एफर्ट करते रहोगे, तो इस रिलेशनशिप में आगे मुझे ना क्लियरली बैलेंस दिखाई दे रहा है. वरना फिर क्या होगा पता है, क्लियरली आप ना, ये इंसान आपको सुनाता रहेगा कि तुम मेरे लिए ये नहीं करते, या आप इस इंसान को बोलते रहोगे कि तुम मेरे लिए नहीं करते. ठीक है, तो यही होता रहेगा इस रिश्ते में, इज व्हाट आई एम क्लियरली सीइंग. ओके, तो आई एम क्लियरली, दिस इज़ व्हाट हैपनिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. अगर आप बैलेंस चाहते हो ना इस इंसान से, अगर इफ़ यू वांट, बिकॉज यू आर द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग मी. ओके, सो इफ़ यू वांट कि आप मुझे, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो इनके साथ भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट द कार्ड इज स्टेटिंग राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग. इफ़ यू रियली वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, देन मैं यही बोलूँगी आप थोड़ा डिजर्विंग एंड फेयर रहना स्टार्ट कर दो. बट मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता, क्योंकि ये इंसान ना कमिटमेंट फोबिक है. अभी कमिटमेंट फोबिया आप इस इंसान के माइंड से, इस इंसान की मतलब प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे को, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे. तो ये कितना आप इसके माइंड से कमिटमेंट फोबिया आप निकाल सकते हो, उसके ऊपर ही रिलेशनशिप फिर डिपेंड कर जाता है. पर आप इतना एफर्ट करना चाहते हो इस पर्सन में, ओके, इज़ द क्वेश्चन. ओके, जितना फेयर एंड डिजर्विंग रहकर इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो ये रिश्ता रियल में इक्वली, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर, एंड दैट इज कमिटमेंट. ओके, इज व्हाट इज हैपनिंग. Let's see what are this person's actions going to be. Man. Okay, almost major arcanas have come. See, his actions are literally no actions. I'm not seeing any actions. See, मुझे तो उनके लिए ना clearly this person, this relationship is on a very transformative phase. See, there is no actions are going to happen. This relationship in future is going to end. See, this person has no good intention in this relationship. ये इंसान को प्रॉब्लम ही कमिटमेंट के इसलिए फील हो रहे हैं, क्योंकि देखो एक भी कप के कार्ड नहीं आए मुझे इस इंसान के लिए. मतलब एक भी कप के, मतलब इंसान ना मतलब सिर्फ फैमिली देखता है. वाई? बिकॉज ही सीज लॉयल्टी इन यू. ओके, वो आप उनको जो प्यार देते हो, जो अनकंडीशनल लव देते हो, ये इंसान ना ये बस देख रहा है, वो चाहिए उसको. ठीक है, पर देना भी तो पड़ता है. वो आपको सामने वो दे नहीं रहा है. यू आर जगलिंग व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप. ओके, तो क्लियरली आई एम सीइंग द पर्सन इज़ वेरी स्टक व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट. तो क्लियरली द पर्सन हियर इज़ फॉर लस्ट. ओके, वो ना अपने नीड्स, वांट्स, लस्ट, ये क्लियरली आगे जाकर ना ये इंसान चीट करेगा और ये रिश्ते में ना एंड है. ठीक है, द कार्ड हियर आर स्टेटिंग, सी, टू डू फेयर एंड जस्ट. ठीक है, इस इंसान के एक्शंस ना आपके अकॉर्डिंग
क्लियरली मुझे ना मतलब आपके लिए सलाह ही ये आई है कि यू नीड टू सरेंडर टू योर विशेस। और ये आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि यू आर द व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग, योर पार्टनर इज़ नॉट एट ऑल वॉचिंग। ओके, तो उसको तो ये समझ नहीं आने वाला, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू कैन सरेंडर टू हिज नीड्स एंड वांट्स, और अगर वो दिन को रात को दिन बोले तो दिन, वो दिन को रात बोले तो रात, वो गलत भी करे तो चुपचाप सहन कर लो। अगर ये चीज़ कर सकते हो, अपने मन को मार सकते हो, सी हियर द कार्ड इज स्टेटिंग, हियर द कार्ड इज स्टेटिंग टू बी फेयर एंड जस्ट। ठीक है, अगर आप ना उनकी गलतियों पर ना क्लियरली पॉइंट आउट करते रहोगे, ठीक है, और आप ये सोचोगे कि ये इंसान मुझे कमिटमेंट दे, मुझे वक्त दे, ये इंसान मेरे लिए ये गिफ्ट लाए, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे में एफर्ट करे, मुझे केयर्ड फील करे, मुझे बहुत ज़्यादा ना इमोशनली केयर करे, इमोशनली अंडरस्टैंड करे, ये नहीं होने वाला है इस रिश्ते में। दिस कार्ड इज स्टेटिंग यू टू स्टे फेयर एंड जस्ट विथ योर सेल्फ एज वेल। ठीक है, द कार्ड इज स्टेटिंग कि अभी ना अपने विशेष मार दो। ठीक है, और इस इंसान के ना द मोमेंट यू विल स्टार्ट पिन पॉइंटिंग दिस पर्सन कि तुम ये जो कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, इट इज़ एन एंड इन दिस रिलेशनशिप। ओके, द मोमेंट यू कैन सरेंडर to this person's needs, wishes and want which are actually lustful or could be money related, okay, they clearly this relationship is going to stay. See, also the person is like not going with the flow. मुझे ना ये relationship कहीं पर भी जाता हुआ दिख नहीं रहा है, to be very honest. This person's actions are related to his needs and wants. अपने नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही उनके एक्शंस दिखेंगे, और वो भी बेयर मिनिमम, वो भी आपके अकॉर्डिंग। मतलब क्लियरली द पर्सन वांट्स, उनके एक्शंस ना उनके नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग होंगे, एंड क्लियरली ऑल एक्शंस दैट आर एक्चुअली ही इज़ वांटिंग फ्रॉम यू, दैट पर्सन वांट्स कि आप जो एक्शन उनके अकॉर्डिंग लो, अपनी नीड्स एंड वांट्स को मार दो और वो जो बोले वो करते रहो। ठीक है, तो क्लियरली द अदरवाइज दिस इज एन एंड। आई एम क्लियरली नॉट सीइंग, सी फेयर एंड जस्ट का कार्ड आया है विथ मैजिशियन। तो क्लियरली ना ये इंसान ना सेल्फिश एरोगेंट ज़्यादा है, कि ये ना जस्टिस वाला कार्ड ना उनके लिए ज़्यादा आया है कि फेयर एंड जस्ट जितना रहेगा इंसान तो ये रिलेशनशिप सही चलेगा। ठीक है, अदर दिस इज़ गोइंग टू ग्रो इफ़ एट ऑल, इफ़ दिस पर्सन स्टेज फेयर एंड जस्ट। ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही सेल्फिश एरोगेंट अपनी मैनिपुलेशन ये सब चलता रहा, क्योंकि सी द पर्सन वांट्स हिज नीड्स एंड वांट्स टू बी मेट। ओके, एंड यू मतलब आप ना कुछ भी बोलना नहीं मतलब बोलने नहीं चाहिए, जो भी वो करे वो सही है, बस उस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियरली द पर्सन इज़ नॉट गोइंग विद द फ्लो, अपनी अपनी ज़्यादा चला रहा है। द पर्सन इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग, क्लियरली इन फ्यूचर कॉन्ट्राडिक्शन इज़ गोइंग टू स्टे, बिकॉज यू वॉन्ट कि ये इंसान ना आपके साथ फेयर एंड जस्ट करे। इफ़ नॉट द पर्सन कांट गिव यू प्रॉपर इमोशंस, अगर वो इमोशनली आपको समझ ना सके, कमिटमेंट ना दे सके, तो एटलीस्ट कुछ फेयर एंड जस्ट तरीके से आपके साथ बिहेव करे। ठीक है, बट दिस पर्सन इज़ इन हिज ओन नीड्स एंड वांट्स सॉर्ट ऑफ अ स्टफ। ठीक है, अपने ही नीड्स एंड वांट्स के लिए, अपने ही लस्ट में, अपने ही, हो सकता है द पर्सन, फॉर सम पीपल द पर्सन वांट्स मनी, इसके लिए आपके साथ है। द पर्सन इज़ विथ यू फॉर लस्ट, फिजिकल नीड्स। ओके, तो आई एम क्लियरली स्टेटिंग द रिलेशनशिप इज़ एट एन एंड, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, और मुझे एफर्ट ना आप ही के तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा इस इंसान को कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हो वो सही है, चाहे वो फिर गलत ही क्यों ना हो। तो क्लियरली द कार्ड इज स्टेटिंग कि ये इंसान को फेयर एंड जस्ट एंड, द मोमेंट यू विल स्टार्ट स्टेटिंग दिस पर्सन कि उनकी गलतियाँ स्टार्ट हो, मतलब यू विल स्टार्ट पॉइंटिंग आउट हिज मिस्टेक्स। ओके, तो क्लियरली दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू एंड। ठीक है, तो जितना फेयर एंड जस्ट, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। ओके, तो कोई इनके अकॉर्डिंग ना कोई ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है, मुझे क्लियरली इसमें ज़्यादा यही आ रहा है कि ये इंसान ना अपने आप को क्लियरली अपने सेल्फिश एंड एरोगेंस में ज़्यादा है। ठीक है, उसको पता है इस रिलेशनशिप में उनकी ज़्यादा चलती है, इवन इफ़ ही डजंट गिव यू कमिटमेंट, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। द पर्सन फील, दैट इज़ वाई द पर्सन फील पैशनेट। ओके, द पर्सन फील्स, मैं ये बोलूँ तो ये इंसान ये कर देगा, मैं रात के 3 बजे भी उसको दौड़ाऊँ तो ये दौड़ेगा,
ये करूँ तो ये करेगा, तो क्लियरली द कार्ड इज स्टेटिंग यू नीड फेयर एंड जस्ट। इस रिलेशनशिप में फेयरनेस और जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंसान ना अगर ऐसा ही अपनी नीड्स एंड वांट्स आपकी तरफ, दिस पर्सन इज गोइंग टू फेस हिज कर्मा एज वेल। ओके, तो क्लियरली द कार्ड इज स्टेटिंग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा फ्यूचर में। देर इज़ नो एक्शन दैट आई एम स्टेटिंग, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वॉट आई एम सीइंग एंड एंड इज़ वॉट आई एम सीइंग। ओके, तो क्लियरली गिव a new person a chance. See, give a new person a chance is what I would suggest. Okay, so that you will get clarity, because divine intervention is in power right now. Okay, so clearly I'm clearly seeing ki even God wants you to see clearly कि who is a person that deserves you in life. Okay, this was my reading for you people. जिन जिन लोगों को resonate किया है, please like, subscribe, share, comment. Okay, if at all you want a reading from me, yes, I am available on WhatsApp, you can contact me. Okay.